Hello, welcome, Hari Om, all my dear blossoms. Just type in the chat box which situations you are into. TTC couple, first trimester, second trimester, third trimester. Also, have you tried yoga? योग साधना आप लोग पहले से कर रहे हो, अभी इंट्रोड्यूस हो रहे हो? What is your situation right? सो ये वर्कशॉप जैसे आपको पता है ऑन द ओकेजन ऑफ इंटरनेशनल यूथ डे वी आर इनवाइटिंग यू टू डू समथिंग व्हिच इज रिलेटेड टू योर जर्नी। ओके, तो ये कोई फिटनेस चैलेंज नहीं है। सबसे पहली चीज, कोई इंटेंस योग प्रोग्राम नहीं है और कोई भी कॉम्प्लिकेटेड पोस्चर्स नहीं है। आप में से काफी लोग जो है अभी जो है कर भी रहे होंगे, लेकिन ये जो स्पेसिफिक 7 डे प्रोग्राम है, ये मैंने उन लोगों को ध्यान में रख के डिजाइन किया है जिन लोगों ने अभी तक कभी भी योग साधना के लिए शुरू नहीं किया है या किसी भी तरह की फिजिकल एक्टिविटीज में नहीं है। तो ये क्यों मैंने किया है, क्योंकि योग के माध्यम से आई वॉन्ट to address your nervous system, and that is why कोई इंटेंस योग साधना स्ट्रेचिंग नहीं है, आसन के परफॉर्मेंसेस नहीं है। दिस इज अ टाइप ऑफ न्यूरो योग। गॉट इट? क्योंकि इफ यू आर इन conception journey or in your pregnancy journey, the most important thing we need to address is our nervous system. Because if nervous system remains in stress mode, the mind keeps overthinking, the body stays on alert mode. आप हमेशा एक इमोशनल डिस्ट्रेस में रहते हो और आपकी बॉडी से भी कनेक्शन लूज होता है, एंड इफ यू आर प्रेग्नेंट यू गेट डिस्कनेक्टेड विद योर बेबी ऑल्सो। दैट इज वाई एग्जैक्टली यहाँ पर न्यूरो योग हमको मदद करता है। एंड व्हाट आर वी एक्सपेक्टिंग फ्रॉम दिस इज you will shift in next 7 days. You will shift from stress to safety, survival to relaxation, and from overwhelm to presence. क्या क्या करेंगे हम इसमें? लेट मी समराइज, क्योंकि इसके बाद एग्जैक्टली हमें वही सारा जो है प्रैक्टिसेस शुरू करने हैं। नर्वस सिस्टम रिलैक्सेशन प्रैक्टिसेस हम करेंगे, वेगस नर्व एक्टिवेशन टेक्निक्स, जनरल ब्रेथ वर्क, माइंड बॉडी अलाइनमेंट एक्सरसाइजेस, इमोशनल रेगुलेशन टूल्स मैं आपको दूंगी, और रिलैक्सेशन और रीसेट प्रैक्टिसेस हम करेंगे। बेबी बॉन्डिंग और माइंडफुल अवेयरनेस जैसे जैसे हमारा 6th डे आएगा उस टाइम पे हम वो करेंगे। शुरुआत में मैं आपके नर्वस सिस्टम और आपके बॉडी को एड्रेस करूंगी। Why this matter? Because when you are connected, you are regulated, you are in that stable mode, you will be experiencing more connection with your body, with your baby. So this is also again what we are doing here. मैंने जो है क्लासेस में एक्सप्लेन किया है हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, कौन से टाइप का नरिशमेंट। Type in the chat box. Let me see how many of you remember which type of nutrition is this. This is not only mental, but it is mind body nutrition working together. Okay, so this International Yoga Day is not only about the movement कि मैंने अभी क्यों शुरू किया, it is just वो एक निमित्त है। It is about coming home to yourself, taking a pause, breathing deeply, and creating a space for healing. Got it? And let's reconnect with the wisdom which is already present in you. So for next 7 days, let us do this together. One breath, one practice, and one beautiful day at a time. Okay? So whether you are planning to conceive, or you are walking through your first trimester, or second, or third, or you are in the last stages that is planning to welcome your baby soon, this journey is for you. Come as you are, let us reset, relax, and reconnect together.
So all of you ready? Type R in the chat box. Most importantly, if you want me to check whether are you doing the sessions correctly, the poses correctly, the activities correctly, you need to put on your camera. पर्दे को खोलो so that I shall be able to guide you with your movements. Though today we are focusing on our upper body. So हम जो आज के जितने movements हैं वो हमारे बैठ करके ही होंगे. If you are not comfortable opening, be relaxed. जैसे हो वैसे करो. Just be in your home, be in your room, have the yoga mat, or if you are on some bed rest activities, be on your bed. ओके तो जहां भी कोई बहुत ज्यादा बॉडी मूवमेंट होगा वहां पर आप रुक जाओगे. यू विल नॉट ट्राई टू एक्सटेंड और स्ट्रेच योर बॉडी. जहां पर ब्रीदिंग है, जहां पर सम sort of we are creating some voices or we are practicing with some sounds, वहां पर आप शुरू. Till now, clear everyone? So once again, I welcome all of my dear blossoms over here. And as we start, we will first start with a prayer. So sit straight, close your eyes, join your hands for prayer. योगेन चित्तस्य पदेन वाचा मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोत्तं प्रवरं मुनीनां पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि. आबाहो पुरुषाकारं शङ्खचक्रासिधारिणम् सहस्रशिरसं श्वेतं प्रणमामि पतञ्जलिम्. गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरवे नमः. हरि ओम. धीरे से आंखें खोलिए and let us start. I hope you are able to see. Okay, थोड़ा सा पीछे जाऊंगी. My voice cleared. Type in the chat box if my voice is clear so that we can go ahead. Got it? Yes. सबसे पहले आप straight आराम से बैठ सकते हो. Be in the comfortable position. I have my mouse over here. Comfortable position. Okay. Now, सबसे पहले हम हमारा पूरा बॉडी की एनर्जी को बैलेंस करें. उसके लिए हमें क्या करना है? सी आवर बॉडी इज मेनली डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स. कैसे है? पांव से लेकर के कमर तक का एक भाग है. आपके कमर से लेकर के आपके कंधों तक का दूसरा भाग है. लोअर बॉडी, मिड बॉडी एंड अपर बॉडी इज फ्रॉम योर नेक टू योर हेड. दीज आर द 3. सो आप सभी को पता है जो यूनिवर्सल साउंड ओम है उसका भी हमारे शरीर में जो एनर्जी है वो 3 भागों में डिवाइडेड है. दैट इज लोअर बॉडी इज कनेक्टेड विद द साउंड अ, मिडिल बॉडी ओ एंड म. O is beautiful blend of the 3 sounds. Maybe we can say 4 क्योंकि जो म है उसके बाद में वो अनुस्वार भी आता है. But we are considering here 3 so that we can it is easy for us to write. Okay. So got it? So now what is happening is कि जब हम ओम का उच्चार करते हैं, जैसे कि आगे जाकर के मैं आपको पूरा का पूरा जब ओम बताऊंगी
तो हमें भी इसी अच्छे ब्लेंड में करने के लिए जो आप आए, इसलिए आज हम इसको 3 पार्ट्स में करेंगे। सबसे पहले हम लोअर बॉडी पे फोकस करेंगे जहां पे अ का उच्चार करेंगे। देन वी विल स्लोली शिफ्ट आवर अवेयरनेस टू द माइंड व्हेन वी आर गोइंग टू प्रैक्टिस ऊ, और उसके बाद में म अनुस्वार के स्टार्ट। First, keep your hands on your lower abdomen region and imagine the energy is flowing from the toes to your waist. That is where you are keeping your hand. Start practicing. We are going to take 3 times at each point. Again, breathe in. More long breath out you will do with this sound. It is going to be beneficial, and you have to imagine the energy flowing from your toes to the base. For last time, breathe in. Slowly move your awareness to the center of your heart. And here we pronounce ooh. Breathe in. Last time. Okay. Slowly bring your awareness. You can keep your hands to the throat region. You can do it like this, or you can cover your throat like this. And here we are practicing, we are making म and m sounds. Maybe मेरा आवाज क्लियर आपको नहीं आएगा, but this is right. Breathe in. Breathe in. More. One more time. More. Now keep your hands on your forehead, and here we are इमेजिनिंग और वी आर विजुअलाइजिंग कि अब जो एनर्जी है पूरे पांव से लेकर के हमारे क्राउन तक आ रही है, और अब यहाँ पर हम पूरे ओम का उच्चार कर रहे हैं विद द ट्रांजिशन।
Slowly bring your hands down. When we are in this state, we can feel the energy flow from top to bottom, bottom to top. Be in this energy. And slowly open your eyes. Now, if it is possible for you, come in the Vajrasana. अगर पॉसिबल नहीं है, आप अपने कंफर्टेबल प्लेस में बैठ सकते हो, कंफर्टेबल पोजीशन में बैठ सकते हो. ठीक है. तो सिट इन योर कंफर्टेबल पोजीशन. और अब आपको क्या करना है, हाथ पीछे आपको लेकर के जाना है, राइट हैंड से लेफ्ट हैंड का जो रिस्ट इस तरह से पकड़ना. सो होल्ड योर लेफ्ट रिस्ट विद द राइट हैंड और अब पीछे की तरफ जाए. सिर को आप जितना आराम से, नो रश एंड नो फोर्स, जितना आराम से आप पीछे की तरफ जा सकते हो आप जाइए. ब्रीद इन एंड व्हाइल ब्रीदिंग आउट ट्राई टू जॉइन योर चिन टू द चेस्ट. आप अपनी चिन को चेस्ट की तरफ लेके आइए. We'll do this 5 times. Breathe in, breathe out, down. Breathe in, and breathe out. Be very slow and gentle. Breathe in and breathe out. Last time एक और बार करेंगे. Breathe in and breathe out. This relaxes your vagal nerve. And now relax. Keep your hands on your laps. अब हम side movement करेंगे. But what we will do is, while breathing in, we are going to look towards right. We will hold our breath for some time, that is 10 seconds, and then coming to the center, we will breathe out. Okay? आप एक बार पहले देख लो और उसके बाद करिए. फिर उसके साथ में हम while breathing in, looking to the left, holding the breath for 10 seconds, and then breathing out, come to the center. 5 repetitions again over here. कहीं भी आपको लग रहा है कि एक्स्ट्रा हो रहा है, नहीं कर पा रहे हो, कोई बात नहीं. Just be with the energy. You will be able to do it with practice. Okay. Yeah. So breathe in, look towards right, hold the breath. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. While breathing out, come to the center. 10 seconds भी नहीं हो रहा है, 5 seconds करो. No problem. थोड़ा सा करना, बस काफी है. Breathe in, left. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. And breathing out, come to the center. Right, breathe in, hold, breathe out, center. Left, breathe in, hold,
Breathe out, center. Comfortable? Right side, breathe in, hold, breathe out and come to the center. Breathe in towards the left, hold, and to the center. Breathe out. लास्ट के 2 बार हम कैसे करेंगे? जब हम ब्रीद आउट करेंगे तो हम बी साउंड के साथ में ब्रीद आउट करेंगे, ओके? बाकी सब वैसा ही है. ब्रीद इन, राइट, होल्ड. With the B sound, you have to breathe out when you are coming to the center. Breathe out. Mm. Breathe in. Hold. While breathing out, when you are coming to the center with the B sound. Okay, now do it for the last time towards right. Hold. And breathe out with the B sound. Then towards left, hold, breathe out with the B sound. इजी? ठीक लग रहा है अब तक? यस. अब धीरे से आप अपने सुखासन पे आ जाइए. इफ एट ऑल सुखासन जो है आपको वज्रासन में भी नहीं बैठना है, आप अभी जो मैंने आपको बताया है वो आप सुखासन में भी बैठ करके आराम से कर सकते हो. ओके, नाउ वी नीड टू डू समथिंग नोन एज स्क्रूइंग, जिससे आपके नेक और शोल्डर और हाथों के मसल्स प्रॉपरली टोन होते हैं विद द रिदम. हाउ मैं आपको डू इज, ये देखिए, आप पहले देख लो. हाथों को बीच में रखना है और जिस तरह से स्क्रू हम घुमाते हैं उस तरह से आपको बाहर की तरफ लेकर के जाना है हाथ. ये कैसे होगा? ब्रीथ इन करते समय, सांस अंदर लेते समय. सांस छोड़ते समय कैसे होगा? आप फिर से अंदर. गॉट इट? तो यूजुअल जो सर्वाइकल के इश्यूज होते हैं वो इस एक्सरसाइज से जाएंगे. सिमिलर वी आर गोइंग टू डू साइड वाइज, वी आर गोइंग टू डू फ्रंट, वी आर गोइंग टू डू अपवर्ड्स. ओके, 3 times each. Start. Breathe in, screw out. You can just open your fingers also, or you can make your fist also. Breathe out. Breathe in. Breathe out. Okay. Breathe in. Breathe out. Similar actions, but this time front. Breathe in. Breathe out. Again, breathe in. हाथों में अगर दर्द हो रहा होगा आप 2-2 बार ही करिए. जब हमारे शरीर को आदत नहीं होती है, we don't have to start with the intense practice. Breathe in. Breathe out. बिकॉज यहाँ पर आपके नेक से लेकर के आपके हाथों तक के सारे जो मसल्स हैं वो काम कर रही हैं. रिलैक्स हो रही है. We have to go now upwards. While breathing in, you will move up.
और जब हम ऊपर जा रहे हैं तो हमें पेन थोड़ा सी ज्यादा, स्ट्रेट एंड देन ब्रीद आउट, कम, पेन हो रहा है, अगेन ब्रीद इन, up, breathe out, done. Last time, if it is paining, just relax. Breathe in and breathe out. Relax. थोड़ा सा हाथ ऐसे ऐसे हिलाइए तो इससे जो है आपका एकदम परफेक्ट अलाइनमेंट हो जाएगा. ओके, यस, रिलैक्स. नाउ व्हाट यू हैव टू डू इज, यू नीड टू, अगर आपको जो है कंफर्टेबल है, सो दिस इज गोइंग टू रिलैक्स योर शोल्डर एंड करेक्ट योर पोस्चर. हाउ यू हैव टू डू इज, आगे आइए, हाथ आपको हाथ ऐसे आगे लाना है, लॉक करना फिंगर्स, स्ट्रेच करना है एंड यू हैव टू गो अप. तो आप इसमें जितना स्ट्रेच कर सकते हो कंफर्टेबली आप उतना स्ट्रेच करो. दिस इज द पोस्चर. और यहाँ पे ब्रेथ अवेयरनेस कैसे रहेगा, यू आर ब्रीदिंग इन, okay, then again you will come down, you will have this interlock fingers and down. Okay, ये हमको repeat नहीं करना है, but we are supposed to hold the posture. Okay, so hands in front, lock your fingers, stretch outside your palm and raise your hand and feel the beautiful stretch you are getting at your back, cervical region. Every muscle is getting relaxed. स्क्रूइंग से भी जो हमको पेन होता है वो भी हमें काफी कुछ रिलैक्सेशन मिलता है. होल्ड दिस हियर फॉर 10 seconds. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 and bring your hands down. Comfortable? अभी इसी पोजीशन में what you need to do is you need to twist. पूरा ट्विस्ट नहीं करना है, आपको हाथ यही रखने हैं. 1, 2, 1, 2, 1 and 2. गॉट इट? यस. ये ट्विस्टिंग हम बीच बीच में रिलैक्सेशन के लिए हमेशा करते रहेंगे, क्योंकि जब भी हमारे सारे एक्सरसाइज स्ट्रेचेस की वजह से कभी भी हमारे पीठ में स्ट्रेच आता है, तो जब हम इस तरह से उसको रिलैक्स करते हैं तो सारी पीठ की, कमर की मसल्स जो है उनका जो स्पाज्म है, जो टेंशन है वो रिलीज हो जाता है. ओके, यस. सो until now I hope this is easy and you are able to do it. If there is any difficulty, reach out. We will try to correct your postures and we will suggest certain innovations in those which will help you to do these postures very easily. Okay, now अभी आप सुखासन में बैठो. Anyone wants to have a water break, you can have the water break. इसके बाद हम थोड़ा सा एक फास्ट एक्सरसाइज करेंगे. लेफ्ट ब्रेक, वेरी इंटरेस्टिंग एक्सरसाइज. वी हैव टू डू इट 30 times at the first. ओके, लेकिन आज अगर स्टार्ट है we will go little slow. First, stretch your hand outside. Make your fist release, fist release, fist release. चलो, do it for 30 times faster. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10. Similarly, sidewise and make the fist relax. जब आप मुट्ठी बना रहे हो तो आपको ये देखना है कि पूरी तरह से पूरा हाथ टेंस हो रहा है, और जब आप छोड़ रहे हो तो पूरा हाथ रिलैक्स हो रहा है. दिस इज न्यूरोमस्कुलर रिलैक्सेशन. फिस्ट रिलीज, फिस्ट
release, tense, release, tense, release. Okay, so here we go. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Last 10. And relax. Okay. Similar. अभी थोड़ा सा फिर से हाथ दर्द हो रहा है. Again, you will just do some random hand movement so that the muscles are getting relaxed. हमें वापस से ऐसा ही करना है. लेकिन इस बार थोड़ा सा ट्विस्ट है. What is the twist? आप सामने हाथ करोगे. आप एक हाथ को बंद करोगे, टाइट करोगे, एक हाथ रिलैक्स. फिर इसको रिलैक्स करोगे तो दूसरे हाथ को. यानी कि क्या है? दिस इज ऑल्टरनेटिव फिस्ट एंड ओपन हैंड. ओके, कैसे करना है देखो. 1 2 1 2 1 2. अगर ये फास्ट नहीं कर पा रहे हो कोई भी बात नहीं. The only thing is you attempt to do it and your neuromuscular connection is established. जब आप प्रैक्टिस करते हैं you will get it more and more. ओके, चलो कैसे करना है देखो. 1 2 3 5 6 7 8 9 10 20 30. ओके, रिलैक्स. साइड वाइज भी इसी तरह से. एक मुट्ठी बंद, एक खुली, फिर वो बंद और दूसरी खुली. 30 times. Okay. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Continue doing. ऑल्टरनेटिवली करना है, इससे हमारे दोनों हेमिस्फीयर्स एक्टिव हो रहे. 20 एंड रिलैक्स. 30. फिर से रैंडम हैंड मूवमेंट जैसा हमने आज बोला. आज हम अपर बॉडी पे फोकस कर रहे हैं. लास्ट 10 minutes. So now what you have to do is come at the बद्ध कोणासन. प्रेगनेंसी में सबसे सेफ अगर कोई आसन है तो वो बद्ध कोणासन. आप इसको बेड में भी बैठे हुए आराम से कर सकते हो. ओके, इसको बटरफ्लाई पोज भी कहते हैं. When you are sitting in this, first we are going to move our hand. आप अपने कमर में हाथ रखो like this. Try to bring it forward, release and backwards. Forward, backward. जब आप आगे करोगे तो पीठ की मसल्स पूरी की पूरी स्ट्रेच हो रही है. पीछे करोगे तो रिलैक्स हो रही है. अगर आप ये धीरे धीरे करना चाह रहे हो और करोगे, you will notice a very different level of relaxation at your back. हमारा मिडिल बैक जो है ना वो हमेशा अनअटेंडेड रहता है, जो बीच वाला बैक. और ये एक्सरसाइज उसको प्रॉपरली ओपन करती है. और जब ये ओपन होता है तो हमारे लंग्स भी ओपन होते हैं. सो फॉरवर्ड. आज हम ये सिर्फ 15 टाइम्स करें. 5 बार हो चुके हैं. 10 मोर. 9 8 7 6 5 4 3 2 and 1. रिलैक्स. नाउ हाथों को अच्छे से पांव के ऊपर रखिए. पकड़ने की भी कोशिश कर सकते हो सो दैट दे आर इंटैक्ट. और अब यहां से हमें शुरू करना है उड़ना. हाउ वी आर गोइंग टू डू. 1 2 3. बटरफ्लाई के विंग्स कैसे होते हैं. So this same we do with this and now with the legs. Be slow and gentle my dear. कहीं भी आप करोगे आपके लोअर एब्डोमेन में, आपके वो में कहीं भी प्रेशर नहीं आना चाहिए. आप धीरे करो, ऐसे कर लो और नीचे लेके जाओ. जहां तक जा रहा है वहां तक करो. आई ऑलवेज से विद कंसिस्टेंसी, विद प्रैक्टिस, पूरा आप अच्छे से एक आइडियल पोस्चर
पोस्चर तक पहुंच सकते हो, बट टू स्टार्ट विथ डोंट रश. सो वी आर डूइंग इट 30 times. 10, 20, 30 एंड रिलैक्स. अगर आप नए हो, आपने कभी नहीं किया है, हो सकता है थोड़ा सा मसल्स पेन हो, बट बिलीव मी, थोड़ी देर के बाद में वो पूरी तरह से चले जाते हैं, क्योंकि कोई भी यहाँ पे इंटेंस क्वेश्चन हम प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं. लेकिन यहाँ से शुरुआत होती है आपकी मसल्स में, आपके पेल्विस में, आपके जॉइंट्स में एक तरह के रिलैक्सेशन की, फ्लेक्सिबिलिटी. सो धीरे धीरे क्यों ना हो, बट वी हैव टू स्टार्ट. गॉट इट विद मी. नाउ अगेन, जैसा हमने बोला था ट्विस्टिंग, कैसा ट्विस्टिंग करना है? 1 2 1 2. You don't have to go and stretch. यहाँ पे हाथ रख के आपको सिर्फ पीछे की तरफ देखने की कोशिश करें, एंड हाथों को आप लेग सपोर्ट दीजिए, जिससे कि आप थोड़ा सा पीछे देख पाओ. With me? Now, if this position is little bit painful for you, आप सुखासन में फिर से आ सकते हो, और या तो फिर आप इसी पोजीशन में साइड स्ट्रेचिंग या साइड बेंडिंग करेंगे. कैसे? Keeping our hand on the mat on the same waist, hand up, and you are bending towards the right. इससे आपका यहाँ का जो pelvic muscles है, सारा जो आपका pelvis है वो ओपन हो रहा है, और फ्लेक्सिबिलिटी उसमें अच्छे से इनकलकेट हो रही है. Again, left hand on the mat, right hand up, और आप लेफ्ट की तरफ साइड वाइज बेंड हो रहे हो. आगे नहीं आना है और ऐसे पीछे से भी नहीं जाना है. दिस. अगेन चेंज द साइड. राइट हैंड down on the mat, and left hand you have to cross over, bend towards the right. आपके साइड मसल स्ट्रेच हो रहे हैं, और वो कंप्लीटली अगेन towards the left, down. One more time we will do right. Now towards the left. Relax. अब आप सुखासन में हो या बद्ध कोणासन में हो, आपको आपके पांव सामने की तरफ लेकर के आने. ओके. अब जैसे हमने हाथों को रिलैक्स और कॉन्ट्रैक्ट किया था, वैसे ही पाँव में के भी मसल्स पे एक बार पूरी तरह से खिंचाव, तनाव लेकर के और उन्हें रिलैक्स करना है. तो जब आप पाँव को स्ट्रेच कर रहे हो तो क्या करना है? घुटनों आपको नीचे की तरफ दबाना है, और आपके पाँव की उंगलियां आपकी तरफ आएगी. थोड़ा सा पीछे. डन. यस. सो जब आप पाँव को जो है कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो, पूरा टेंशन में ला रहे हो, खिंचाव महसूस कर रहे हो, तो आपको घुटने जो है जमीन पे और प्रेस करने हैं, और आपके जो तलवे हैं वो आपके शरीर की तरफ आएंगे. Okay, your toes would be towards your body, knees pressing on the ground or the bed, whatever you are sitting in, and then relax. Again, just जितना खिंचाव आप अपने पैरों में ला सकते हो, उतने पूरे टेंशन को क्रिएट करो मसल्स में. घुटने नीचे की तरफ जा रहे हैं, एड़ियां थोड़ी सी उठी हुई हो सकती हैं, पंजे आपकी तरफ, और रिलैक्स. एक बार और. जस्ट स्ट्रेच, पूरी तरह से टेंशन लेकर के आ जाएंगे पाँव में, पाँव के मसल्स में. प्रेस योर नीज ऑन द मैट and your toes towards your body. Stretch, 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 stretch.
और रिलैक्स। गुड, यस। तो आज के लिए हम अपर बॉडी में फोकस कर रहे थे, एंड दिस इज हाउ वी आर फोकसिंग। जितना भी आपको याद रहेगा, आप पक्का इसको प्रैक्टिस करो। नाउ वी आर कमिंग टूवर्ड्स आवर फेसेस। अब फेस के लिए भी ज्यादा कुछ नहीं करना है। जैसे हमने हर जगह एक स्ट्रेच और एक टेंशन क्रिएट की और उसके बाद में रिलैक्स किया, द सेम थिंग यू नीड टू डू फॉर योर फेस ऑल्सो। कैसे करेंगे? सबसे ज्यादा वेगल नर्व के स्टिमुलेशन हमारे फेस में होते हैं, पता है कि नहीं सबको? मैं बता रही हूँ, ठीक है। व्हाट यू हैव टू डू, पूरे गुस्से में आना है, एकदम जैसे हम एकदम गुस्से में आते हैं, जितना खींच सकते हो, जितना आपको जो है स्ट्रेच कर सकते हो करना है, और फिर रिलैक्स करते हुए पूरी आंखें बड़ी करते हुए आपको देखना। ओके, चलो स्टार्ट। स्ट्रेच 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 and relax with your wide open eyes. Again, stretch, relax with your wide open eyes. Stretch, पूरी तरह से सिकोड़ लेना है, हर एक मसल में टेंशन आते हुए दिखना चाहिए। गले में भी एक्सटेंड हो सकता है। एंड रिलैक्स विद द वाइड ओपन आईज। हर एक चीज रिलैक्स हो रही है। फॉर द लास्ट टाइम वी विल डू stretch, 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 stretch. Hold this tension. Relax with wide open eyes. आप जब ये बहुत थके हुए होते हो या फिर किसी स्ट्रेस में होते हो, अगर आपने ये 3 बार भी कर लिया ना, तो टिंग 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 पूरा नर्वस सिस्टम आपका रिसेट है। करके जरूर देखना और बताना मुझे ग्रुप में कि सच में कब आपने ऐसा किया और आपको क्या महसूस हुआ। डन 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 डन। Now, as we are coming towards the end, we are going to do Nadi Shodhan. How many of you know what is Nadi Shodhan? Anulom Vilom? Okay. I am considering that this is only the start and we are doing everything fresh. So, Nadi Shodhan means हमारे शरीर में 3 चैनल्स होते हैं along with the 3 चैनल्स मतलब इड़ा, पिंगला, सुषुम्ना. Positive energy, negative energy, and the balancing energy. One energy, that is Ida, is responsible for all your mental processes. Pingala, Suryanadi, is responsible for all your physical processes. And both these nadis are getting balanced, neutralized, and kept intact through Sushumna. So this is how the channels are. अब जब हम नाड़ी शोधन करेंगे तो क्या होता है, हम एक नाक से नोस्ट्रिल से सांस अंदर लेते हैं, दूसरे नोस्ट्रिल से हम सांस बाहर छोड़ते हैं, फिर जिससे हमने ब्रेथ आउट किया है, सांस बाहर छोड़ी है, उसी से हम फिर से सांस अंदर लेंगे और दूसरी से हम बाहर छोड़ेंगे। और इस समय जिस नोस्ट्रिल का हम यूज नहीं कर रहे होते, हम उसको क्लोज करते हैं। सो आई होप आप लोगों को पता है कि एक बार में हम सिर्फ एक ही नोस्ट्रिल से सांस लेते हैं पूरे दिन में भी। यू कैन जस्ट चेक, यू कैन जस्ट कीप योर हैंड इन फ्रंट ऑफ योर नोज, यू कैन ब्रीद आउट। जैसे अभी मेरी राइट नाड़ी चल रही है, यू कैन जस्ट चेक कि आपकी कौन सी नाड़ी चल रही है। इसे स्वर विज्ञान भी कहते हैं। तो अगर जब हम अनुलोम और विलोम इस तरह से करते हैं तो क्या होता है कि हमारी दोनों ही नाड़ियां बैलेंस होती है। ओके, सो वी विल स्टार्ट। आपको आपका लेफ्ट हैंड ध्यान मुद्रा में रखना है, लाइक दिस, और आपको आपके नी के ऊपर रख लेना है। आपका दूसरा हाथ कैसा रहेगा? विथ थंब you are going to close your right nostril, and with the ring finger you are going to close the left nostril whenever it is needed. Okay, तो पहले शुरुआत हमेशा हम लेफ्ट नोस्ट्रिल को यूज करते हैं while breathing in. Okay, so now
Close your right nostril. Breathe in through the left. Relax, breathe in, no force. Then close your left nostril. Open your right nostril and breathe out. Complete breathe out. Again, no holding and no forcing. Again, with right nostril, breathe in. Close your right nostril and breathe out with your left. Breathe in left. Close your left nostril. Breathe through your right nostril. Breathe out. Now, breathe in through your right nostril. As I'm also closing, तो मेरी आवाज change हो रही है. Be with it. Breathe out through your left nostril. Right nostril is closed. Breathe in left. Close the left. Open the right. Breathe out. Breathe in right. Close it. Open the left and breathe out. अपने आप से करेंगे 3 बार. Breathe in right, the left. Close left. Breathe out right. राइट नोस्ट्रिल से सांस लेंगे. राइट को बंद करेंगे. लेफ्ट खोलेंगे और वहां से सांस बाहर. लेफ्ट नोस्ट्रिल से सांस अंदर. लेफ्ट बंद. ओपन योर राइट और यहां से आप सांस बाहर छोड़ रहे हो. डू इट ऑन योर ओन. और जब आप ये प्रक्रिया या अनुलोम विलोम नाड़ी शोधन बंद करते हो तो हमेशा लेफ्ट नोस्ट्रिल से सांस बाहर छोड़ते हुए ही बंद करनी है. Do it for 2 more times and then relax. You are starting the Shodhan with left, so you can end with right. Right nostril से सांस बाहर छोड़ते हुए relax करो. Close your eyes. Be with the energy. अभी तक के किए हुए श्रम को महसूस करें. आपका ध्यान आपके पांव की उंगलियों की तरफ ले जाए और वहां से धीरे धीरे ऊपर आइए. Bring your awareness from your toes towards your waist and imagine that each and every part is getting relaxed. Breathe in, breathe out. Now bring your awareness towards your lower abdomen, stomach region, chest region. पीछे की तरफ से रीढ़ की हड्डी को फॉलो करते हुए अपनी अवेयरनेस को ऊपर की तरफ ले आइए. शरीर का प्रत्येक अवयव पूरी तरह से शिथिल हो रहा है. कहीं भी कोई तनाव नहीं है. योर बॉडी सॉफ्टनिंग. आपके हाथ, उंगलियां, कलाई, फोर आर्म, एल्बोज, आर्म, शोल्डर्स पूरी तरह से रिलैक्स हो रहे हैं. अब ध्यान आपका कंधों से लेते हुए
गले तक, आगे पीछे से पूरी तरह से ऊपर की ओर उठते हुए चेहरे पर आ रहा है. योर चिन, lips, teeth, cheeks, nose, eyes, eyebrows, forehead, and back of the head. Complete relaxation. कहीं भी कोई तनाव महसूस करें, उसे तुरंत बाहर जाती हुई सांस के माध्यम से रिलीज करें. योर अवेयरनेस एट द टॉप ऑफ द हेड. अब आप एकदम एरियल व्यू में अपनी बॉडी को देख रहे हो. Relax yourself, energized, vitalized, rejuvenated. एक अलग तरह की शांति का अनुभव हो रहा है. अपने मन में अपने शरीर के लिए कृतज्ञ हो जाए. आई एम थैंकफुल फॉर माई बॉडी फॉर बीइंग सो सपोर्टिव. सारे सिस्टम्स इतने अच्छी तरह से काम कर रहे हैं. मैं बहुत आभारी हूँ. अपने मन के लिए आभारी रहे कि पूरी तरह से 1 घंटे बॉडी एंड माइंड एक अलाइनमेंट में थे. मन यहाँ वहां भागा नहीं. रिपीट विद मी. आई एम हैप्पी. आई एम सेफ. आई एम नर्चरिंग द लाइफ विद utmost care and dedication. Everything is happening in its perfect way. सब कुछ बहुत ही सही तरीके से हो रहा है. ॐ सहना भवतु. सहनौ भुनक्तु. सह वीर्यं करवावहै. तेजस्विनावधीतमस्तु. मा विद्विषावहै. ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः. Slowly bow down and rubbing your hands, rolling your hands over your face. You can open your eyes.